تشریف فرما بقیت السلف رفیق العلماء حضرت علامہ مولانا رفیق عالم خاقی صاحب کو اللہ مدد العلی ہمدرد قوم و ملت عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا شہباز مصباحی صاحب کو اللہ مداح مصطفیٰ جناب غلام نور نبی صاحب جناب سید شہباز عالم صاحب سامعین اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العزيز وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک بہت خوبصورت تقریر نصیحت آمیز گفتگو مشفق و مہربان علماء نواز حضرت علامہ مولانا رفیق عالم خاقی صاحب سے اپنے سماعت کی آواز اتنی رکھیے کہ سیٹی نہیں مارے، اتنی بھی کم مت کر دیجیے کہ بولنے والے کو محسوس ہو جائے۔ آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے جسے اہل محبت شب نور کہتے ہیں، یعنی نور والی رات۔ میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن بنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر سال اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، لیکن انسان ایک الگ سے خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو اپنے اپنے رہنماؤں کی یاد مناتے ہیں۔ جشن منایا جاتا ہے کسی چیز کے 25 سال پورے ہونے پر، سلور جوبلی کے طور پر 50 سال پورے ہونے پر، گولڈن جوبلی کے طور پر 100 سال پورے ہونے پر، ڈائمنڈ جوبلی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یعنی یہ 100 کے عدد پورے ہونے پر ایک خوشی الگ قسم کی ہوتی ہے، ایک انداز الگ ہوتا ہے۔ تو غلامان مصطفیٰ کو، دیوانہ مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے یہ 1500 سالہ اپنے محبوب کی جشن ولادت جو دیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، جس کی تیاری 1-2 مہینہ پہلے سے نہیں، سالوں پہلے سے دیوانی اپنے اپنے انداز میں کر رہے ہیں۔ دور نہ جاتے ہوئے اپنے شہر بھاگلپور میں آپ چلے جائیں، گلی گلی، محلہ محلہ، پوچھا پوچھا بقعہ نور بنا ہوا ہے، اور یہ دعوت فکر دے رہا ہے، اے دنیا والوں دیکھ لو، جس نبی کی یاد میں ہم نے اپنی گلی کو منور کیا ہے، اپنے گھر کو روشن کیا ہے، وہ نبی تو ایسا نبی ہے کہ جس کے آنے سے اللہ نے کائنات کو روشن کر دیا، کائنات کو منور کر دیا۔ علامہ اشتیاق عالم شہبازی کہتے ہیں، مہک رہی ہے فضا کو ضرور آتے ہیں، مہک رہی ہے فضا کو ضرور آتے ہیں، بتا رہی ہے یہ خوشبو حضور آتے ہیں، گلی گلی کو منور کرو چراغوں سے، زمین پہ آج ہمارے حضور آتے ہیں، اور زباں کے ساتھ اگر دل کا بھی تعلق ہو، جہاں پکارو وہیں پر حضور آتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ضیا یہ میرا عقیدہ، یہ میرا ایمان ہے کہ مدد کے واسطے آقا ضرور آتے ہیں، مدد کے واسطے آقا ضرور آتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں آپ حضرات جو آج نبی کی عشق میں ان کی ذکر کو سننے کے لیے آپ یہاں جمع ہیں۔ بہت سارے ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ایک گزارش کروں گا محبتانہ، اگر قبول ہو جائے تو میں ان کا شکر گزار ہوں گا کہ یہ نبی کی محفل ہے، محفل میں اس طرح سے بد نظمی اچھی نہیں لگتی ہے،
नबी की महफिल को हम खूबसूरत बनाएं ताकि अल्लाह अपने हबीब के सदक़े मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बना दे। आप वहाँ भी बैठे हैं, अगर सिमट के बैठ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ज़्यादा देर के लिए महफिल पाक भी नहीं है, मुख्तसर से वक्त में मैं गुफ्तगू करूँगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मौलाना शाहिद रज़ा आए हैं, खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, वो आप तक अपना कलाम पहुँचाएँगे। उसके बाद जो है हज़रत मौलाना शहबाज मिसबाही मुख्तसर से गुफ्तगू फरमाएंगे, लेकिन शानदार गुफ्तगू फरमाएंगे। उसके बाद सलात व सलाम दुआ पर महफिल पाक का इख्तिताम होगा। बहरहाल जितने लोगों ने सुना, जो लोग पढ़ के आ गए हैं, मौला उनके हर कदम को कामयाबी वाला कदम बना दे। अल्लाह सबको कामयाबी की मंजिल से हमदरार कर दे। आइए हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, कुरान ने कहा नूर आ गया, नूर आ गया। अच्छा, नूर के माने क्या है? नूर रोशनी को कहते हैं। रोशनी की ज़रूरत कब पड़ती है? जब अंधेरा होता है, और जितना अंधेरा होता है उतनी रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा अंधेरा हो तो 0 बल्ब से काम चल जाता है, उससे ज़्यादा अंधेरा हो तो 50 पावर की ज़रूरत, उससे ज़्यादा हो तो 100 पावर। अगर एक कमरे को रोशन करना होता है, एक बल्ब हम लगा देते हैं। 2 कमरे को रोशन करना हो, 2 बल्ब लगाते हैं। मोहल्ले में रोशनी की ज़रूरत होती है, हम ट्यूबलाइट और मरकरी लगाते हैं। पूरे इलाके को न जाने कितने कितने ट्यूबलाइट और जो है मरकरियों से रोशन किया जाता है। यानी अंधेरा जितना ज़्यादा सख्त होगा, रोशनी उतनी ज़्यादा चाहिए, रोशनी उतनी ज़्यादा चाहिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ज़रा हम देखें कि जब मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं तो ज़माने में कैसा अंधेरा छाया है, ज़माने में अंधेरे का आलम कैसा है, अंधेरे ने अपना पाँव कितना पसार रखा है। आप कहेंगे कि भैया आप बताइए कि ज़माने में कितना अंधेरा था। हज़रात, पहले के नबियों के ज़माने में बनी इसराइल की कौम में एक नबी इस इलाके में होता था तो दूसरा नबी दूसरी कौम में होता था। यानी बैक वक्त कई नबी हुआ करते थे। कोई इस इलाके को हिदायत का नूर दे रहा है, कोई उस मुल्क को हिदायत का नूर दे रहा है, कोई उस कबीले को हिदायत का नूर दे रहा है। लेकिन आप जानते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पे उठा लेने के बाद तकरीबन 570 साल का ज़माना गुजरा। कोई हादी नहीं आया, कोई रहबर नहीं आया, कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया। हर तरफ अंधेरे का दौरा है, जुल्म ने अपना पंजा गाड़ रखा है। इस कदर अंधेरा है, इस कदर अंधेरा है कि चीज़ें रहती हुई भी नहीं दिखाई दे रही है। आप देखते हैं ना, अभी कुछ देर के लिए लाइट गुल हो गई थी, अभी आप थोड़ी दूर पर देखना चाहें आपको चीज़ नहीं दिखती है। अंधेरा होने की वजह से चीज़ें रहते हुए भी दिखाई नहीं देती है। कभी कभी अनजाने में ऐसा होता है कि इंसान चलते हुए कीमती चीज़ों को कुचल देता है और उसे खबर भी नहीं होती है। बस इसी तरह से अंधेरा ऐसा छाया था, लोगों की निगाहों पे ऐसे पर्दे पड़ गए थे। बाप था, बाप का बकार मौजूद नहीं था। माँ थी, माँ की अजमत बरकरार नहीं थी। काबा था, काबा का तकद्दुस बरकरार नहीं था। न जाने कितने बुत उसके अंदर बैठकर पूजे जा रहे थे। माँ का आलम ये था, माँ थी लेकिन माँ को लोग बूढ़ी होने के बाद नौकर से भी बदतर हाल कर रहे थे। अरे ज़माना इतना नाजुक था, इतना नाजुक था। आज भी लोग माओ की कदर नहीं करते हैं, लेकिन उस जमाने का आलम ये था कि बयान करने वाले ने बयान किया कि कोई शख्स एक बूढ़ी औरत के गले में रस्सी डालकर घसीट रहा था। किसी ने पूछा इस बूढ़ी औरत का कसूर क्या है, तुम उसे क्यों खींचे ले जा रहे हो? तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया था, ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। तो कहने वाले ने कहा, माँ के साथ भी कोई ऐसा सलूक करता है? माँ है तो तुम इसे घसीट क्यों रहे हो? कहा, माँ है, बूढ़ी हो चुकी है, अब किसी काम के लायक नहीं रही, अब इसे हम बाजार ले जाकर बेचेंगे, जो पैसा मिलेगा हम उससे अपने जरूरियात को पूरी करेंगे। हज़रात, आप सोचे कि जुल्म का कैसा माहौल गर्म था, कैसा माहौल गर्म था कि बेवाओं को उसके शौहर के साथ जिंदा चिता पर जला दिया जाता था। कैसा माहौल था, कैसा माहौल था। हज़रात, आज मेरे मोहल्ले में भी बच्चियां जिसके घर गरीब होती है, शादी के लायक नहीं होती है, तो मोहल्ले के जो अहले दिल हमरा होते हैं वो पैसे इकट्ठा करके उसकी शादी का एहतमाम करते हैं। अगर नान मिला की जवान बेटियों पर रहम ना आए, अगर कोई बच्ची किसी की
की गरीब हो और वो बीमारी से झुलस रही हो तो दुश्मन के दिल में भी रहम आ जाता है, वो भी उसके दवा का इंतजाम कर देता है। मेरे प्यारे आप जरा सोच कर बताए कि वो जमाना कितना भयानक था, जहालत कितनी कितनी गहरी थी, कितना गहरा अंधेरा था कि एक बाप अपनी बेटी को कत्लगाह तक ले जा रहा है। मेरे भाई आज के दौर में भी इतना जुल्म और जबर का दौर है, लेकिन कोई किसी को जिंदा नहीं गाड़ता है, कोई किसी को जिंदा नहीं गाड़ता है। दुश्मन भी मार देता है तब गाड़ता है। लेकिन कैसा दौर था कि बाप का दिल होते हुए भी उससे औलाद की मोहब्बत निकल चुकी थी। एक बाप अपनी औलाद को, अपनी बेटी को जिंदा गाड़ रहा था। कितना भयानक दौर था। वो बच्चियां सिसक सिसक कर कह रही होंगी, ए गाड़ने वाले मेरे बाप, बता तो मेरा कसूर क्या है, मैंने जुर्म क्या किया है, मेरा गुनाह क्या है, तू मुझे जिंदा गाड़ रहा है। मेरा जुर्म तो बता दे, मेरा जुर्म तो बता दे, मेरा कसूर तो बता दे, आखिर क्यों मुझे जिंदा गाड़ा जा रहा है। बच्चियां सिसक सिसक कर कह रही थी, क्या मेरा जुर्म यही है कि मैं तेरे घर पैदा हो गई। ए मेरे बाप, मैं अपनी मर्जी से तो पैदा नहीं हुई, मेरे रब ने मुझे पैदा किया है, लेकिन तू मुझे इस पर तू इतना मुझ पर जुल्म क्यों कर रहा है। जब भी बाप उस पर मिट्टी डालता चला जाता, बच्चियां सिसकती रहती, लेकिन बाप के दिल पर कोई असर नहीं पड़ता। आखिरकार बच्चों को गाड़ दिया जाता। क्या उस बच्ची की आह नहीं निकलती होगी, ए परवरदिगारे आलम, तूने मुझे दुनिया में भेजा है, हम नन्ही सी जान है, हम पर इतना जुल्म क्यों हो रहा है। मौला कोई रहबर भेज दे, कोई हादी भेज दे जो मुझे बाप के जुल्म के इस पंजे से बचा दे, बाप के हाथों हम जिंदा दफन होने से बच जाए। यकीनन जब आमना की गोद में अब्दुल्ला के लख्त जिगर आए हैं, 12 तारीख को आने वाला वो अल्लाह का हबीब आया है, वजह तखलीक के कायनात आया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत आया है, शब बस में हिदायत आया है, शहरे यारे इरम आया है, ताजदार हरम आया है। तो आने के बाद ये सदा गूंजी है, अब बच्चियां जिंदा नहीं गाड़ी जाएंगी, ए लोगों बच्चियां नहीं गाड़ी जाएंगी। तो गाड़ने वाले बाप ने कहा था कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो आवाज आई, तुम गाड़ने वाले कौन हो। तो गाड़ने वाले ने कहा कि मैं इसका बाप हूँ। तो आवाज आई, सुन, अगर गाड़ने वाला बाप है तो बचाने वाला रसूल पाक है, बचाने वाला रसूल पाक है। अब बच्चियां नहीं गाड़ी जाएंगी। ए नादानो, तुम इन बच्चियों को गाड़ दोगे तो बताओ बैतुल मक़दस पर इस्लाम का झंडा गाड़ने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी कैसे पैदा होगा। ए लोगों, अगर तुम इस बच्ची को गाड़ दोगे तो फिर बताओ कायनात की दस्तगीरी करने वाला गौसे आज़म कैसे पैदा होगा। ए लोगों, अगर तुम इसे गाड़ दोगे तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का बोलबाला करने वाला, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करने वाला गरीब नवाज कैसे पैदा होगा। ऐ लोगों, अगर इसे गाड़ दोगे तो शहबाज़े मिल्लत व दीन कैसे पैदा होंगे, ये औलियाए दीन कैसे पैदा होंगे, जिससे अल्लाह का पैगाम ज़माने तक पहुंचेगा। आवाज़ आई, नहीं, बच्चियां नहीं गाड़ी जाएंगी। जब बच्चियों को बचा लिया गया, बच्चियों को बचा लिया गया, बच्चियां मुस्कुरा उठी हैं, बच्चियां खिल उठी हैं। आका ने कहा, ए लोगों, ये बच्चियां रहमत नहीं है, बल्कि ये बच्चियां तो रहमत है, ये अल्लाह की रहमत है। कहा, सुन, जिसकी 3 बेटी वो बाप जन्नती है, जिसकी 3 बेटी हो वो अपनी बच्ची की परवरिश करे, उसको पर्दे में रखे, उसकी शादी ब्याह करा दे, वो बाप जन्नती। एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो 2 ही बेटी है, क्या मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। दरियाए रहमत जोश पर था। मेरे आका ने कहा कि जा, जिसकी 2 बेटी वो बाप भी जन्नती। एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, मेरे पास तो 1 ही बेटी है, क्या मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, जा, जिसके पास 1 बेटी और वो अपनी बेटी को मेरी बेटी की सीरत सैयदा फातिमा के सांचे में ढाल दे, वो बाप भी जन्नती। एक सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, बेटा देना बेटी देना तो अल्लाह का काम है, ये किसी माँ बाप की कोशिश से तो नहीं होता है। मेरे घर तो बेटी नहीं है, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। मेरे आका ने कहा, सुन ले ऐ सहाबी, तुम तमन्ना करना, काश मेरे घर बेटी होती, अल्लाह तुझे इस तमन्ना के सदक़े में जन्नती बना देगा। तो कुर्बान जाओ कि बेटी वो है जिसकी चाहत बाप को जन्नती बना देती है, चाहत जन्नती बना देती है। तो ये मकाम किसने बताया, ये मर्तबा किसने बताया।
कहना पड़ेगा आमना के लाल ने बताया है, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर ने बताया है। तो अब आप बताइए कि हम उस नबी की आमद पर जश्न ना मनाएं तो क्या करें, मिलाद ना सजाएं तो क्या करें, घर मोहल्ले को ना सजाएं तो क्या करें। आज जो मेरे आंगन में बेटियां खेल रही है, आज जो मेरे घर में मेरी बेटी घर की रौनक बनी है, ये मेरे मुस्तफ़ा का न सदका है, मेरे मुस्तफ़ा का न सदका है। तो जिस मुस्तफ़ा ने मेरी घर की बेटियों की हिफाजत की है, उनकी विलादत के मौके पर हम उनका जश्न न मनाएं तो क्या करें। मेरे प्यारे कुछ लोग कहते हैं कि नबी माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, नबी नहीं है, ये मिलाद कैसी है, हर साल मिलाद क्यों मनाते हो, वफात क्यों नहीं मनाते हो। तो मैं कहता हूँ मेरे भाई, वो और होंगे जिनका नबी मर गया होगा, मेरा नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, मेरा नबी जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा, क्योंकि मेरा नबी वो है जिसकी मोहब्बत गुनाहगारों के दिल में भी आ जाए तो अल्लाह उसे भी जिंदगी अता फरमा देता है, उसे भी जिंदगी अता फरमा देता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यहाँ पर रुककर मैं आपके ज़हन को थोड़ा और करीब करना चाहूँगा। आप सब मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं? एक बार मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आज की रात जश्न मनाने की रात है, अपने दिल से अपने नबी को पुकारिए, कहिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। एक सहाबी रसूल हैं, अर्ज करते हैं ए मेरे आका, ए मदीने वाले आका, ए टूटे दिलों के सहारा, ए आमना के लाल, जिसको कोई कलेजे नहीं लगाता आप उसको अपने सीने से लगाते हैं। ए मेरे आका, मैंने कलमा पढ़ा, आप पर ईमान लाया, नमाज़ें आपने बताई हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़े के बारे में आपने बताया हम रोज़ा रखते हैं, हज के बारे में आपने बताया हम हज करते हैं, ज़कात देने की फजीलत आपने बताई हम ज़कात देते हैं। लेकिन ए मेरे आका, इस्लाम लाने से पहले, इस्लाम कबूल करने से पहले भी कुछ नेकियां थी मेरी, क्या अल्लाह मुझे उसका बदला देगा। मेरे आका ने कहा कि तुम्हारी वो कौन सी नेकी है। वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ज़माने जाहिलियत में मैं ऊँट चराया करता था, मेरे ऊँट गुम हो गए, मेरे 3 ऊँट थे, 2 ऊँट गुम हो गए। वो ऊँट जो है, पंखा जरा घुमा दीजिएगा, वो गला खुश कर रहा है, इसको भी थोड़ी देर घुमा दीजिए। दरूद शरीफ पढ़ के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, ज़माने जाहिलियत था, मेरा तो ऊँट गुम हो गया। या रसूल अल्लाह, मैं उसे खोजते खोजते एक जगह पहुँचा जहाँ मेरे ऊँट बने थे, वहाँ एक बूढ़ा शख्स था। मैंने उससे कहा ये ऊँट मेरे हैं, मुझे दे दो। अभी बात हो ही रही थी कि घर से बच्चे की विलादत की रोने की आवाज़ आई। बूढ़े ने आवाज़ देकर पूछा, बेटा पैदा हुआ है कि बेटी पैदा हुई है। अंदर से आवाज़ आई, बेटी पैदा हुई है। मैंने बूढ़े से पूछा, तुम क्या करोगे, बेटा पैदा हुआ तो क्या करोगे, बेटी पैदा हुई तो क्या करोगे। कहा अगर बेटा पैदा हुआ तो जश्न मनाएंगे, बेटी पैदा हुई तो उसको गाड़ देंगे, बेटी पैदा हुई तो उसको गाड़ देंगे। तो उस बच्चे खेल रहे हैं तो दूर लेकर बैठ जाइए थोड़ी सी। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बच्ची की उम्र में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह ताला सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत में सदका अता फरमाए। और मेरी बात गौर से सुनिए कि उस बूढ़े ने कहा कि आप बेटी को हम गाड़ देंगे। तो सहाबी रसूल कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। मैंने कहा ऐसा कर, वो बेटी मुझे दे दे। बूढ़े ने कहा ऐसे नहीं दूंगा, तू अपना ऊँट मुझे दे दे, मैं बेटी तुझे दे दूंगा। तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने वो ऊँट दे दिए, बेटी ले लिए, 3 ऊँट दिया, एक बेटी ले ली। घर लाकर अपनी लौंडी को दिया, इसकी खिदमत करो। वो उसकी खिदमत करने लगी। बच्चियां थोड़ी बड़ी हो गई, जैसे अभी वो बच्ची अपने बाप की गोद में खेल रही है। कहते हैं साहब रसूल, या रसूल अल्लाह, मैं घर जाता, बच्ची दौड़ कर मेरे पास आ जाती, मैं उसे गले से लगा लेता, वो मेरे सीने से चिमट जाती, वो कभी मेरे गालों का बोसा देती, कभी मेरी दाढ़ियों के साथ खेलती। मुझे इतना अच्छा लगने लगा, मुझे उसकी आदत लग गई। या रसूल अल्लाह, मैं दोनों कबीलों में जाकर खोजा करता था, जो कबीला अपनी बच्चियों को गाड़ा करता था, मैं पता करता कि बेटा हुआ है कि बेटी। अगर मुझे खबर होती बेटी हुई है, मैं 3 ऊँट ले जाता, उसको दे देता, बेटी ले आता। या रसूल अल्लाह, आज मेरे
के घर कई सौ बेटियां जो है परवरिश पा रही है। ये कहते जा रहे थे, मेरे मुस्तफ़ा के आंखों से आंसू निकलते जा रहे थे। सहाबी कहते हैं कि जब मेरे आका ने चेहरे अनवर को उठाया है तो आंसुओं से दाढ़ी मुबारक तर हो चुके थे। मेरे आका ने कहा, ऐ सहाबी सुन, अल्लाह ने तुझे ईमान की दौलत से नवाजा, ये उसी नेकी का बदला है, और अल्लाह आखिरत में तुझे खजाने खोल कर इसका बदला अदा करेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका ने बेटियों की हिफाजत की तो जवान लड़की खड़ी हुई, उसने भी कहा होगा, या रसूल अल्लाह, मेरी इज्जत बाप के लिए मैं रहमत, अगर मैं ससुराल चली जाऊं तो क्या होगा? मेरे आका ने कहा, बेटी जब अपने बाप के घर रहे, बाप के लिए रहमत, ससुराल चली जाए, शौहर के लिए रहमत। और फिर बुढ़ियों जब जो है सईफुल उमर में जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है, वो बूढ़ी खड़ी होकर कही होगी, या रसूल अल्लाह, जवानों के लिए तो आपने बता दिया, बच्चियों के लिए बता दिया, हम जब सईफुल उमर हो जाएंगी, जिस्म की ताकत जवाब दे जाएगी, तब मेरा क्या हाल होगा? तो मेरे आका ने कहा, घबरा मत, जब तू अपने बाप के घर बेटी रहे, बाप के लिए रहमत, ससुराल चली जाए, शौहर के लिए रहमत, जब माँ बन जाए, औलाद के लिए रहमत ही नहीं, बल्कि अल्लाह ने औलाद के लिए तेरे कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया है। जो औलाद जन्नत में जाना चाहे वो अपने माँ बाप की खिदमत करे। ये मकाम एक माँ को किसने अता किया? वो ज़माना था कि माँ के गले में रस्सी डाल कर लोग घसीट रहे थे। आज ये बहारें आ गई है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद हो चुकी है। मदीने में एक चांद निकला है जिसकी रोशनी ज़माने में फैल रही है। जिहालत का खात्मा हो रहा है, नूर फैलता जा रहा है। माँ को आप कोई बोझ ना समझे, माँ के कदम के नीचे जन्नत है। जो जन्नत जाना चाहे वो अपनी माँ को राजी कर ले। बाप जन्नत का दरवाजा है, जो जन्नत जाना चाहे अपने बाप को राजी कर ले। मेरे प्यारे, ये मकाम किसने दिया है? जो ये कहते हैं मीलाद मत मनाओ, मीलाद मनाने से क्या होता है? मैं कहूँ कि मीलाद के बारे में अगर तुम मना करते हो, कभी तुम्हारा बेटा खड़ा होकर तुम पर ज़बान दराजी कर ले, तुम पर हाथ उठा ले, तुम पर धक्का मार के निकाल दे, तो फिर किसकी बात सुनाओगे? कि तुम्हारे बेटे के दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो, तो वो कोई और जात नहीं, मदीने वाले की जात है, वही जात है जिसके बारे में कहोगे, ए बेटे तू मुझे धक्के मार रहा है, बता। मैदाने महशर में नबी ने पूछ लिया कि मैंने तो बाप को तेरे लिए जन्नत का दरवाजा कहा था, तो उसे अपने दरवाजे से बाहर निकाला है, मैं भी तुझे जन्नत के दरवाजे के अंदर नहीं जाने दूंगा। तब वहां क्या जवाब होगा? तो जो चाहता है कि मेरी औलाद मेरी इज्जत करे, मुझसे मोहब्बत करे, तो अपनी मोहब्बत बाद में सिखाओ, नबी की मोहब्बत पहले सिखाओ। क्योंकि जो बच्चा नबी से मोहब्बत करने वाला होगा, नबी का वफादार होगा, नबी का आशिक होगा, आप पर हाथ उठाने से पहले, माँ की तौहीन करने से पहले उसे याद आएगा, अगर मैंने माँ का दिल तोड़ा, बाप को सताया, तो मेरा महबूब मदीने वाला नाराज हो जाएगा, और जिससे मदीने वाले नाराज हो जाएंगे उससे अल्लाह कभी राजी नहीं होगा। क्योंकि आला हज़रत कहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये रोशनी बाप के मकाम को, वहाँ मैं कह रहा था कि अंधेरे में लोग कीमती चीज़ों को कुचल देते हैं, तो वो ज़माने जाहिलियत का दौर था, वो गुमराही का अंधेरा था कि बाप होते हुए बाप को लोग पहचान नहीं रहे थे, माँ होते हुए माँ के ये अजमत का पता नहीं था। लेकिन जब आमना की गोद में अल्लाह का नूर चमका है, वो नूर ऐसा चमका है कि ज़माने को रोशन करता चला गया। यहाँ भी वही चमकाया, वहाँ भी उसी ने चमकाया, जमीन वालों को उसी ने चमकाया, आसमान वालों को उसी ने चमकाया, शजरो हजर को उसी ने चमकाया, कायनात के सर्रे सर्रे को उसी ने चमकाया। तभी तो आला हज़रत कहते हैं, चमक
उससे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरात, दिन में सूरज भी निकलता है जो गली को रोशन करता है, घर को रोशन करता है, मोहल्ले को रोशन करता है, समाज को रोशन करता है, लेकिन कोई ऐसी रोशनी पैदा नहीं हुई जिससे दिल रोशन हो जाए, जिससे दिल रोशन हो जाए। अगर दिल किसी नूर से रोशन होता है तो वो नूर कोई और नहीं, नूरे मोहम्मदी है, नूरे मोहम्मदी है। जो ये चाहता है कि मेरा अंधेरा दिल रोशन हो जाए, वो मदीने वाले से मोहब्बत शुरू कर दे। उन्हीं की मोहब्बत दिल में आती है तो दिल रोशन होता है, और जिसका दिल रोशन होता है वो आंखें बंद करके भी इतनी दूर देखता है कि जितनी दूर खुली आंख वाला भी नहीं देख सकता, खुली आंख वाला भी नहीं देख सकता। किसी कहने वाले ने कहा है कि दीवानों की के देखने का आलम बड़ा निराला होता है। जो मुस्तफा का दीवाना होता है ना, वो आंख बंद किए किए सब कुछ देख लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। बुजुर्गों के वाक़यात को आप पढ़िए, मालूम होगा अल्लाह के ऐसे ऐसे वली गुजरे हैं कि जिनकी बारगाह में लोग अभी सोच कर आया था मुझे ये कहना है, वो खुद उससे पहले उसको बयान कर दे रहे हैं। तो फिर बताइए कि जब गुलामों के इल्म का ये आलम है तो मुस्तफ़ा के इल्म का आलम क्या होगा। वो नादान है जो ये कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। मैं कहता हूँ, एक बात बता कर मैं को खत्म करता हूँ। मौलाना साहब, मेरा टाइम लगभग हो चुका है ना जी। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अल्लाह ने कहा नूर आ गया, कैसा नूर है सुनिए। एक मौके पर हुजूर काफले के साथ कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, काफला जमा था, वहाँ पर पानी की जरूरत पड़ी, प्यास महसूस प्यास का एहसास हुआ। पानी काफले में खत्म हो चुका था। लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, पानी की ज़रूरत है। मेरे आका ने हज़रत अली को बुलाया और कहा जाओ पहाड़ के पीछे एक हबशी गुलाम जा रहा है मशकीज़ा लेकर, उसे पकड़ कर ले आओ, उसे बुला कर ले आओ। अब मैं यहाँ पर रुक कर पूछना चाहता हूँ कि एक पहाड़ के पीछे कौन रंग का आदमी है और गुलाम है कि आज़ाद है, ये कौन बता रहा है? ये कौन बता रहा है? ये गैब का इल्म नहीं है तो क्या है? ये गैब का इल्म नहीं है तो क्या है? हज़रत मौलाए कायनात गए और उससे कहा कि तुझे मेरे आका ने बुलाया है। उसने कहा मैं किसी का गुलाम हूँ, वक्त के मुताबिक जाता हूँ आता हूँ, ताखिर होने से वो मुझे डांटेगा। कहा तुझे मेरे आका की बात माननी पड़ेगी, मेरे साथ चल। वो ले आए, मेरे आका ने मशकीज़े पर हाथ लगाया, पानी निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। काफले वालों ने अपने बर्तन को भर लिया, अपने बर्तन को भर लिया, सैराब हो गए, पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, बर्तनों को भरते जा रहे हैं। पानी खत्म नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि चश्मा जारी हो चुका है, चश्मा जारी हो चुका है। हाथों से पानी का सैलाब निकलता चला जा रहा है। आला हज़रत कहते हैं उंगलियां हैं फैज़ पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदिया पंजाबे रहमत की है जारी वाह वाह, नदिया पंजाबे रहमत की है जारी वाह वाह। जब सब भर गया, मेरे आका ने मशकीज़े से हाथ हटाया तो वो गुलाम देखकर हैरत ज़दा रह गया कि पूरे इलाके पूरे काफिले में पानी भर गया, लेकिन मेरे मशकीज़े से पानी एक कतरा भी कम नहीं हुआ। वो कदमों को पकड़ लिया, कहा ए मोजज़ा दिखाने वाले नबी, अब मैं आपका गुलाम बनूंगा, मैं उसका गुलाम नहीं बनूंगा। मेरे आका ने कहा अच्छा तो कलमा पढ़। मेरे आका ने कलमा पढ़ा दिया। कलमा पढ़ने के बाद मेरे आका ने अपना दस्ते करम फेर दिया। जो ही दस्ते करम फेरना था, चेहरे से नूर झलकने लगा, रोशनी झलकने लगी, चेहरा चमकदार हो गया, मोटे मोटे होठ खत्म हो गए, नक्शो निगार अच्छे हो गए, वो बड़ा खूबसूरत हो गया। जब वो मशकीज़ा लेकर अपने मालिक के पास पहुंचा तो मालिक कभी ऊंट को देखता, कभी मशकीज़े को देखता, कभी उसको देखता, कहता तू कौन है? ऊंट तो मेरा है, मशकीज़ा मेरा है, लेकिन तू मेरा गुलाम नहीं है, तू मेरा गुलाम नहीं है। तो उसने कहा मेरे मालिक सुन, गुलाम मैं हूं तो वही, लेकिन
فرق یہ ہے کہ پہلے میں تیرا غلام تھا، مدینے والے کا غلام بن چکا ہوں. پہلے میں تیرا غلام تھا، اب میں آمنہ کے لال کا غلام بن چکا ہوں. نور والے نے نورانی ہاتھ کو اپنا نورانی ہاتھ میرے چہرے پر پھیرا. اللہ نے میرے وجود کو میرے وجود کو نور سے بھر دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے بایا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈالے صدقہ نور کا. عزیزان ملت اسلامیہ، جو اس نور والے سے محبت کرتا ہے، اس نور کے صدقے وہ بھی چمکنے لگتا ہے. وہ چمکتا ایسا چمکتا ہے بھائی صاحب، دنیا کے پاؤڈر کریم سے آپ زمین کے اوپر چمک سکتے ہیں. کفن میں چمکنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. کفن میں لپٹ کر چمکنا یہ آسان نہیں ہے. حشر میں چمکنا یہ آسان کام نہیں ہے. جو قبر میں، جو دنیا میں بھی چمکائے اور کفن میں بھی چمکائے. کہنے والے نے کہا ہے نا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جو محمد عربی کا غلام ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی چمکتا ہے، لپٹے ہوئے کفن میں بھی چمکتا ہے. اس غلام سے جو کفن لگ جائے وہ کفن بھی چمکتا ہے. اور جب غلام مصطفیٰ میدان محشر میں اٹھتے ہیں تو وہاں بھی ان کا انداز الگ ہوتا ہے. پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے؟ سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے؟ پروانہ بخشش لیے ڈھونڈیں گے فرشتے اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہے؟ اور کہتے ہیں، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں بیدم شوارسی، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول. کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبروئے رسول. اللہ تعالیٰ میرے کہنے کو آپ کے سنوں کو قبول کرے، اور اسی طرح اللہ ہمیں کم از کم سال میں ایک مرتبہ اپنے محبوب کے ذکر کی محفل کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً یہ محفل ہم آپ سمجھے نہ سمجھے، لیکن یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک بڑا سبق ہوتا ہے. آنے والی نسلیں، آج کا دور بڑا پرفتن ہے. آج کالج اور اسکول کے نام پر آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، آپ کے عقیدے پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. بچے کو خبر نہیں ہے میرا باپ کیا تھا، میرے باپ کا عقیدہ کیا تھا. وہ جس کی سنتا ہے اس کی مان لیتا ہے. اگر آپ اس محفل کو برقرار رکھیں گے، سال میں ہی صحیح کم از کم علماء کی باتوں کو سن کر اللہ نے چاہا ایک جملہ بھی اس کے دل میں اتر گیا تو آپ کی اولادیں سنور جائیں گی، آپ کی اولادیں نکھر جائیں گی، اور یہ سلسلہ نسلًا بعد نسل چلتا رہے گا. تو کم از کم گھر میں ایک فرد مصطفیٰ کا غلام بنے گا تو پورے گھر کا ماحول اچھا ہوتا رہے گا، سماج اچھا ہوگا، سوسائٹی اچھی ہوگی. زمانے سے جہالت کو مٹانا ہے تو پہلے اپنی اولاد کو مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار بنا دو، تو پھر وہ مصطفیٰ کا وفادار بنے گا، آپ کا پہلے وفادار بنے گا. کیوں کہ گھر میں آپ ہوں گے، آپ کی وفاداری کر کے وہ اپنے نبی کو راضی کرنا چاہے گا. میرے پیارے، جو لوگ مصطفیٰ کا ادب نہیں سکھاتے ان کی اولادیں بھی اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتی ہے. کہنے والے نے کہا ہے کہ جس کو آقا کی محبت نہیں ملنے والی، جس کو آقا کی محبت نہیں ملنے والی، اس کی نسلوں میں شرافت نہیں ملنے والی. اور چاہے سجدے میں ہی مر جائے نبی کا دشمن، یہ تو طے ہے اسے جنت نہیں ملنے والی. پہلا اور آخری قاری تھا نبی کا بیٹا، پہلا اور آخری قاری تھا نبی کا بیٹا. اب سرے نیزہ تلاوت نہیں ملنے والی، اب سرے نیزہ تلاوت نہیں ملنے والی. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے، ہمارے بال بچوں کو نیک بنائے، ایک بنائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئے ہیں باقی ہیں ان کو بلا دیا جائے یا سلام کر دیا جائے، جو آپ کہیے گا. تھوڑی دیر مختصر انداز میں ہی سب کو پڑھوا دیا جائے، ٹھیک ہے نا؟
तो माशाअल्लाह सब लोग राजी हैं, एक बार मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आइए जनाब सैयद शहनवाज आलम साहब को मैं दावत कलाम पेश करता हूँ, वो तशरीफ ला रहे हैं, मोहब्बत से सुनिएगा सुभान अल्लाह कह के। उसके बाद मौलाना शारिक रजा, फिर मौलाना शहबाज मिसबाई, फिर सलातो सलाम दुआ पर महफिल पाक का इख्तिताम होगा।